Good morning, students. Today we will talk about another type of paranasal sinus, that is the maxillary sinus in detail. सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट साइनस है, फर्स्ट साइनस है टू डेवलप. शेप है इसकी, इट इज़ पिरामिडल इन शेप. वॉल्स जो होती हैं साइनस की बड़ी थिन होती हैं, और ये रीज़न है कि जो पोस्टीरियर मैक्सिलरी जो टीथ हैं, दैट इज़ द प्रीमोलर्स एंड द मोलर्स, वो इस साइनस को पेनिट्रेट कर जाते हैं. उनके जो लॉन्ग रूट्स हैं वो पेनिट्रेट करते हैं साइनस को, एंड दे लाई बीनीथ द म्यूकस लाइनिंग. जो साइनस की म्यूकस लाइनिंग है उसके लेवल तक ये साइनस को पेनिट्रेट कर जाते हैं, उसके नीचे तक. इन दिस फिगर हियर यू कैन सी द मैक्सिलरी साइनस ऑन बोथ द साइड्स. बायलेटरल हैं ये भी, एंड पिरामिडल इन शेप. लार्जेस्ट हैं आउट ऑफ द फ्रंटल, एथमोइडल, sphenoidal maxillary is the largest, and you can see the borders of the maxillary sinus. चार इनके borders हैं: superior, inferior, lateral, medial. Medial border is formed by the nasal cavity. Inferior border formed by the alveolar process of the maxilla. Lateral border is formed by the zygomatic process of the maxilla, and superior border is formed by the floor of the orbit. So the different borders of the maxilla are the superior border. It is also known as the roof of the maxillary sinus. So it is formed by the floor of the orbit. और क्योंकि floor of orbit है तो जो nerve traverse करेगी यहाँ पे, that is the infraorbital nerve. Inferior border और floor is formed by the alveolar process. Alveolar process वो जिसमें कि teeth जो हैं उनके लिए socket बनता है, teeth उसमें lodge होते हैं. That is the alveolar process of the maxilla or the upper jaw. और साथ में इन्फीरियर बॉर्डर को बनाने में और कौन हेल्प करते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग जो टूथ हैं उनके रूट्स भी हेल्प करते हैं. और जो लेवल है इन्फीरियर बॉर्डर का वो है एट द लेवल ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द एला ऑफ द नोज. एला ऑफ नोज का जो लोअर बॉर्डर होगा वहाँ पे फ्लोर होगा मैक्सिलरी साइनस का. मीडियल बॉर्डर बाय द नेजल कैविटी एंड लेटरल बॉर्डर इज फॉर्म्ड बाय द zygomatic process of the maxilla. In this figure here you can see this is basically इस figure में maxilla के जो अलग अलग parts हैं, the frontal process of the maxilla, the zygomatic process of the maxilla. यहाँ से ये zygomatic bone जो है वो start हो गई, तो maxilla का जो part zygomatic bone में contribute कर रहा है, that is the zygomatic process of the maxilla. alveolar process ये पूरा जिसमें teeth जो हैं, teeth के लिए socket बनेगा, उस part को जो maxilla का part contribute कर रहा है, that is the alveolar process of the maxilla. Frontal bone को जो contribute कर रहा है, that's the frontal process of the maxilla. So this is again it's a picture that's showing the maxillary sinus. और इसमें आप एक opening देख सकते हैं. This is the ostium of the maxillary sinus towards the roof. कहाँ पे located है ये? maxillary sinus के roof के पास located है, और इसकी opening होती है into the middle meatus of the lateral wall of the nose. So the opening of the maxillary sinus is into the middle meatus, lower part of the hiatus semilunaris. Opening roof के ज़्यादा near है. Height and जो anterior posterior depth है that is same 3.5 centimeter. The width is 2.5 centimeter. So this is hiatus semilunaris और यहाँ पे maxillary sinus की opening है. Arterial supply, venous drainage same है as the nasal septum and the lateral wall of the nose. That is the facial artery, the infraorbital क्योंकि orbit के नीचे है, so infraorbital artery. Greater palatine palate से close है, that is the greater palatine. Venous drainage is by the facial vein and the pterygoid plexus of the vein. Nerve supply is the trigeminal nerve. Trigeminal nerve की क्योंकि maxillary sinus है तो यहाँ जो branch आएगी that will be the maxillary nerve. Maxillary nerve की भी एक सब branch है, that is posterior superior alveolar nerve. कि alveolar process के नज़दीक है, उससे superior side पे है, so superior alveolar nerve.
इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व विच इज़ ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी नर्व, ये भी सप्लाई करेगी और उसकी भी सब ब्रांचेस होंगी, दैट इज एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर एंड पोस्टीरियर मिडल सुपीरियर एल्वियोलर. Lymphatic drainage is by the submandibular nodes. So in this figure here, you can see the various branches, that is the infraorbital nerve, posterior superior alveolar, middle superior alveolar, anterior superior alveolar. ये सब basically alveolar process के ऊपर है. That is why they are so named. क्लिनिकल एनाटमी की अगर बात करें मैक्सिलरी जो साइनस है, तो सबसे ज़्यादा कॉमनली इन्वॉल्व हो सकता है ये साइनस. इन्फेक्शन यहाँ पे कॉमन है. इन्फेक्शन का जो सोर्स बनेगा वो या तो नोज़ नेजल कैविटी से इन्फेक्शन यहाँ आ सकता है, या फिर डेंटल इन्फेक्शन, डेंटल कैरीज, जो कीड़ा लगता है दांत में उसकी वजह से जो कैरीज होती है वो वहाँ का इन्फेक्शन भी मैक्सिलरी साइनस में आ सकता है. ड्रेनेज इस साइनस का डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसकी जो ओपनिंग है वो रूफ से नज़दीक है, फ्लोर से दूर है. तो इसलिए आर्टिफिशियली सर्जिकली ओपनिंग जो है वो बनानी पड़ती है नियर द फ्लोर. और इसके लिए दो तरीके हैं. वन इज़ दी एंट्रम पंक्चर एंड अनदर मैथड इज़ दी क्लेडवेल ल्यूक ऑपरेशन. एंट्रम बेसिकली बोलते हैं कोई भी क्लोज्ड कैविटी है बोन में, तो उस क्लोज कैविटी में जो है पंक्चर किया जाता है. तो यहाँ किस कैविटी में पंक्चर किया जा रहा है? लेटरल वॉल एंड स्पेशली इंफीरियर मिएटस के लेवल पे जो लेटरल वॉल है वहाँ पे पंक्चर किया जा रहा है, उसको ब्रेक किया जा रहा है और फ्लूइड को ऊपर से नीचे की तरफ पुश किया जा रहा है ताकि वो ड्रेन हो सके. दूसरा मैथड है क्लेडवेल ल्यूक ऑपरेशन. इसमें भी एक ओपनिंग बनाई जाती है आर्टिफिशियली. ये ओपनिंग बनाई जाती है बाय जो अपर लिप है उसके डीपर पोर्शन में कैनाइन फोसा पे ये आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाई जाती है. जस्ट डीप टू द अपर लिप, वेस्टिब्यूल ऑफ माउथ जो है, टीथ से आगे का जो पोर्शन है दैट इज द वेस्टिब्यूल ऑफ द माउथ, और उस पोर्शन से होते हुए कैनाइन फोसा में ओपनिंग बनाई जाती है एंड दैट प्रोसीजर इज नोन एज क्लेडवेल ल्यूक ऑपरेशन. अगर मैक्सिलरी साइनस अफेक्ट होता है और पेन होता है तो वो रेफर होगा टू द अपर टीथ एंड द इंफ्राऑर्बिटल स्किन, बिकॉज इन सब की जो नर्व सप्लाई है वो सेम है, दैट इज मैक्सिलरी नर्व. कार्सिनोमा कॉमन है. मैक्सिलरी जो साइनस है कार्सिनोमा कॉमन है. जो उसकी म्यूकस लाइनिंग है वहीं से कार्सिनोमा का जो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, अराइज होता है, वो वहीं से होता है. एंड जो सिम्टम्स हैं मैक्सिलरी साइनस कार्सिनोमा के वो डिपेंड करते हैं कि ग्रोथ किस डायरेक्शन में आगे प्रोसीड कर रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है, उसका कोर्स क्या है, किस एरिया को वो इन्वेड कर रहा है, उस पर उसके सिम्टम्स डिपेंड करते हैं. तो अगर सपोज रूफ को इन्वेड किया है, ऑर्बिट को इन्वेड किया है ग्रोथ ने, तो जो सिम्टम्स आएंगे वो आएंगे डिप्लोपिया, दैट इज डबल विजन, एंड प्रोप्टोसिस. प्रोप्टोसिस का मतलब होता है एबनॉर्मल प्रोट्रूशन और डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे आएगा एबनॉर्मल प्रोट्रूशन हो जाता है. और अगर इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व भी, क्योंकि इसी लेवल पे ट्रेवर्स करती है रूफ के लेवल पे ही, तो अगर उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो फेस में पेन होने लग जाएगा और मैक्सिला की जो स्किन है वो एनेस्थीसिया वहाँ पे हो जाएगा, इनसेंसिटिव हो जाएगी वो टू पेन. यही ग्रोथ अगर फ्लोर के साइड पे है तो वो पैलेट को अफेक्ट करता है, वहाँ पे एक बल्जिंग हो जाएगी, एक बल्ज आ जाएगा वहाँ पे और अल्सरेशन हो जाएगा पैलेट का. अगर इस ग्रोथ का डायरेक्शन एंटीरियर साइड की तरफ है, आगे की तरफ है, तो जो आगे की तरफ जो कैनाइन जो टीथ हैं उन पे जो फोसा है, कैनाइन फोसा उस रीजन में, उसको ये ऑब्लिटरेट कर देगा, उसको पूरी तरीके से रिमूव कर देगा, उसको कवर कर लेगा एंड उसके वजह से एक स्वेलिंग दिखेगी फेस पे. पोस्टीरियर डायरेक्शन में जाएगा तो पैलेटाइन नर्व्स को इन्वॉल्व करेगा जिससे कि सीवियर पेन होगा जो रेफर होगा टू दी अपर टीथ. मीडियल डायरेक्शन में नेजल कैविटी है तो नोज में जाएगा तो देयर वुड बी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन.
epistaxis, and epiphora. We've already discussed in our previous lecture what epiphora is. Lateral direction में जाता है तो it can lead to the swelling of the face, और जो labiogingival groove है that is between the lip and the gum, जो groove है वहाँ पे एक mass हो सकता है which उसको कि palpate किया जा सकता है. In this figure basically you can see the canine fossa of the maxilla. This is the canine fossa, दो इसकी clinical significance है. एक तो एंटीरियर साइड में अगर ग्रोथ बढ़ता है तो इसी फोसा को ऑब्लिटरेट करके फेस की स्वेलिंग क्रिएट करता है. दूसरा जो ऑपरेटिव प्रोसीजर है जिससे कि आर्टिफिशियली ड्रेनेज रूट बनाया जाता है तो वो इसी में एक ओपनिंग बनाई जाती है इसके नाइन फोसा में ही, जहाँ से कि ड्रेनेज किया जा सकता है मैक्सिलरी साइनस का. सो वी हैव कंप्लीटेड द क्रॉस एनाटॉमी ऑफ द मैक्सिलरी साइनस as well as the clinical conditions. Thank you so much.